السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد مہدی رضوی کربلا مقدسہ سے میں حسینی ہوں، پروگرام میں آپ سب کے سامنے براہ راست موجود ہوں، اور جس طریقے سے ہر ہفتے ہمارا مقصد ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں مولا کا چاہنے والا، مولا کا ماننے والا موجود ہو، اس کو کربلا مقدسہ کی زیارت کرائی جا سکے تاکہ وہ مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر سکیں اور مولا سے اپنی دعائیں مانگ سکیں۔ اور اس کے لیے آپ جو ہے اپنے موبائل سے دیے گئے اسکرین کے نمبر پر جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر کال کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر امام حسین اردو ٹی وی 4، فیس بک پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ہم سے جب بات کر کے آپ سلام کرتے ہیں مولا کو، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آپ سب کی طرف سے ہم چل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باب الحوائج کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین۔ السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ السلام علیک یا من وفا ببیعتہ۔ السلام علیک یا من مضى على بصیرت من امرہ۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ یا قطیع الکفین یا باب الحوائج ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین۔ السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولجعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیع الشہداء واسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب کی طرف سے آج ہم کربلا مقدسہ میں ابھی ہم نے دنیا کے سارے مومنین، دنیا کے جس بھی کونے موجود ہیں ان کی طرف سے ہم نے ابھی امام حسین علیہ السلام، باب الحوائج علیہ السلام کی زیارات پڑھی، اور قسم خدا کی ابھی 23 ذی القعدہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کے شہادت۔ علیکم السلام ورحمۃ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کون بول رہی ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں؟ سیدہ بیگم فرام انڈیا۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا استقبال ہے اس وقت سرزمین کربلا مقدسہ پر۔ آپ بالکل اس وقت بین الحرمین، ایک طرف روضہ باب الحوائج علیہ السلام ہے، ایک طرف روضہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں حاجتیں ہوں، تمنائیں ہوں، باب الحوائج کی بارگاہ میں اپنے دل سے مانگے، جناب سکینہ کا واسطہ دے کر مولا ضرور قبول فرمائیں گے۔ سلام پیش کریں مولا کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم مولا استاد بہن نے مجھے زیارت کربلا فرمایا، زیارت کربلا کی۔ ہلو جی ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ مولا کو سلام پیش کر چکی، آپ نام بتائیں، میں آپ کا نام
परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिखा जाता है और इंशाअल्लाह अभी आपका नाम जो है इस पर लिख भी दिया जाएगा मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परचम पर। और इंशाअल्लाह हम आप सब के हक़ में दुआगो होंगे और हमारी दुआ होगी अल्लाह आप सबको जल्द अज जल्द करबला और सारी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। हम आपके हक़ में दुआगो होंगे। हम इजाज़त चाहते हैं ताकि और भी लोग हैं उन्हें करबला की ज़ियारत मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। सैयदा बेगम जी ज़रूर ज़रूर, आप अपना नाम लिख कर भी भेज दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम मौला के परचम पर नाम लिख कर आपको ज़रूर भेज देंगे। जी तो मैं फरमा रहा था अभी 23 तारीख को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहादत की तारीख गुज़री है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया है कि मन जल्स अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आगाज मेरे वालिदैन का नाम लिखाना कल आज बार कॉल किए थे। जी आपका नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप? कलीम हैदर इंडिया से। जी मैंने आपका नाम भी लिखा था और इंशाअल्लाह इस वक्त भी आप हमारे साथ मौजूद है। हम आप सब के हक़ में दुआगो हैं और इंशाअल्लाह जो आपका नाम लिखा गया है परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो आपके पास इंशाअल्लाह भेज भी दिया जाएगा और इंशाअल्लाह वो आप अपने आँखों से देखेंगे कि आज यहाँ आपका नाम मौजूद है, कल आप ख़ुद इस मकाम पर इंशाअल्लाह मौजूद होंगे मौला की बारगाह में। हमारी दुआ है अल्लाह आप सबको जल्द अज करबला और सारी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। जी इसी के साथ इजाज़त चाहते ताकि और लोग भी ज़ियारत कर सकें, आप ही की तरह मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह। जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम कहाँ से बोल रही हैं आप? मसरूर फातिमा इंडिया। माशाअल्लाह आपका इस्तकबाल है इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। आप इस वक्त मौला की बारगाह में मौजूद हैं। जो भी आपके दिल में हाजत तमन्ना है वो बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करें और अपनी हाजात को उनसे तलब करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मैं सलाम भेजती हूं। मेरे माँ बाप मेरे वालिदैन को जो ज़ियारत नसीब करे। इलाही आमीन। फिर मेरे शौहर को हर एक उनकी दिली मुराद पूरी करे। जो भी है मांगे आप मौला की बारगाह में मांगे, रो रो कर मौला की बारगाह से तलब करें, ज़रूर मौला अता फरमाएंगे। हमें इस साल इस वबा से हर एक इंसान को बचा दे परवरदिगार। इलाही आमीन। जो भी मरहुमीन है हमारे जो भी जितने मरहुमीन है उनको मग़फ़िरत फरमाए। अजर ज़ियारत इलाही आमीन। इलाही आमीन। फरमाए। जो भी मोहताज है मौला की ज़ियारत का हमारी दुआ है बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइज में अल्लाह आपकी तमाम तर नेक हाजतों को कबूल फरमाए। यकीनन आप दुनिया के जिस भी कोने में मौजूद हों, स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करें और अपने दिल की हाजात मौला के सामने बयान फरमाएं। यूट्यूब पर इमाम हुसैन उर्दू TV 4, फेसबुक पर इमाम हुसैन उर्दू TV 4 पर जाएँ। आप जब मौला को सलाम पेश करते हैं तो अपने आप को आप कैमरे के सामने देख भी सकते हैं। ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद उनकी बारगाह में गिड़गिड़ा कर मांग रहे हों और मौला आपको सुन रहे हों। ऐसा आपको महसूस होगा आप मौला के रोज़े के सामने बैठे हुए हैं। जितना हो सके दुआएं मांगिए। हम यहाँ पर इसीलिए हमारा मकसद है कि आप दुनिया के जिस भी कोने में हो दिल से एक बार लब्बैक या हुसैन कहिए, लब्बैक या अब्बास कहिए और कसम खुदा की हमें कॉल करिए। हमारा मकसद ये है आपको करबला की ज़ियारत कराएं, आपको इमाम हुसैन की ज़ियारत कराएं, आपको उस दर की ज़ियारत कराएं जिस दर की ज़ियारत के लिए आप नहीं, मलाइका भी तड़पते हैं, अंबिया भी तड़पते हैं, औसिया भी तड़पते हैं। तो हमारी क्या बिसात है। हम तो इमाम हुसैन के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। हमारे ज़िंदगी का मकसद ही करबला है, हमारे हयात का मकसद ही करबला है। जहाँ भी आप हैं आपकी तरफ से फ़ोन करें और दिल से लब्बैक या हुसैन के। और जब भी मौला की बारगाह में मांगें तो कसम खुदा की अश्कों के साथ मांगें। अल्लाह बहुत जल्दी कबूल फरमाता है जब किसी के आंखों में आंसू हो और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाबुल हवाइज की ज़ात से मांगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मौला उसकी दुआओं को रद्द फरमा दें, नहीं हो सकता है। सलामुन अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी नुमान अली, लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। आप जो भी आपके दिल में हाजतें हैं, यकीनन सबसे बड़ी हाजत जो थी वो बाबुल हवाइज के दिल में थी कि जनाब सकीना के लिए पानी खैमे में लेकर चले जाते, मगर वो तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। आज भी वो कलक दिल में लिए बाबुल हवाइज इस मकाम पर सो रहे हैं। उनको सलाम करें और जो भी हाजतें हैं बाबुल हवाइज अब मौला अब्बास और इमाम हुसैन से मांगे, मौला पूरी फरमाएंगे। सलाम पेश करें उनके बारगाह में। अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मोहम्मद हबीबुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वली अल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलाम अलैका या इब्न अली मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैका या इब्न खदीजा कुबरा, अस्सलाम अलैका या असरल्लाह व इब्न सारल वल बिस्र मशहूर। मैं मौला की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ और मौला के रोज़ा पर मेरी दुआ कीजिएगा कि मैं मेरे बेटे को और मेरी मिसेस को अल्लाह मौला जल्द अपने रोज़ा पे बुलाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हमारी दुआ है नुमान अली साहब करबला मुक़द्दसा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीडिया ग्रुप और ख़ुसूसन उर्दू टीवी की काविश यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, आपके हक़ में हम दुआ करें। आप करबला तशरीफ़ लाएँ, अपने अहलो अयाल के साथ तशरीफ़ लाएँ, अपने घर वालों के साथ तशरीफ़ लाएँ। मौला जल्द अज जल्द आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाए। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे ताकि और लोगों को भी ज़ियारत कराई जा सके। जी ठीक है, अल्लाह। जी तो जब करबला में आप मौला को सलाम करते हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है जहाँ भी बैठा हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत के लिए ये शर्त नहीं है कि आप दुनिया के किस कोने में बैठे हों, लेकिन जब सलाम करिए तो ये भी सोचा करिए कि हमारे ही इमामों में से एक इमाम ने ये कहकर सलाम किया है, अस्सलामु अला शैबिल खजीब, अस्सलामु अलल खद्दित तरीब। कसम खुदा की ये जुमले क्या हैं, कौन इसको समझ सकता है कि सलाम हो उस ज़ाते मुक़द्दस पर कि जिसकी दाढ़ी उसके खून से लाल हो गई थी। कौन समझ सकता है ये तो वही जान सकता है जिसको एहसास करबला हो, जिसको एहसास तारीख़ करबला हो। तो जब आप सलाम दिया करें मौला को, उसी तरीके की कैफियत होना चाहिए कि गोया आप मौला के सामने मौला के हालात से वाकिफ़ हों। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आका या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी आप कौन, आपका इसमें गिरामी? आगा मैं आसिफ अली मैर सक्कर सिंध पाकिस्तान से मौला को सलामी पेश करूंगा और मौला से अर्ज भी है, जो भी आपके दिल में तमन्नाएं हैं वो बाबुल हवाइज को जनाब ज़ैनब की रिदा का वास्ता देकर, इमाम हुसैन को अली अकबर के सीने में लगी हुई बर्छी का वास्ता देकर मांगे, मौला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आमीन। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन शहीद करबला मौला, अस्सलाम अलैका या अबल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला सहाबुल हुसैन। मौला आपको वास्ता है शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम का वास्ता है, मौला आपको नन्हे सगीर अली अस्कर का वास्ता है, बीमारे करबला मौला सज्जाद बीमार का वास्ता है, मौला मुझे अपने चैनल पर करबला बुलाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं भी आपके ईरान के जल्द बॉर्डर खुल जाए मौला, और मुझे चैनल पर भी बुलाएं। मैं गरीब हूँ मौला, नौकरी भी दिलवाएं मौला, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं, मौला हमारी मदद करें मौला, बुलाएं भी नौकरी भी दिलवाएं। इलाही आमीन। इंशाअल्लाह मौला इमाम हुसैन अली अकबर के सदक़े में, बाबुल हवाइज जनाब ज़ैनब के सदक़े में आपकी हाजात को कबूल फरमाए, और आपका नाम भी परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिख दिया गया है, और जिन मोमिनीन ने भी हमको फ़ोन किया, कॉल किया, उनका भी नाम इंशाअल्लाह अभी परचम पर लिख दिया जाएगा। और इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं ताकि और दूसरे लोगों को भी ज़ियारत करा सकें।
फ़ी अमानिल्लाह। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मकसद आप दुनिया के किसी कोने में हो, आप अमेरिका में हो, आप लंदन में हो, आप कनाडा में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, आप दुबई में हो, आप सऊदी में हो, आप कुवैत में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को आप एक मरतबा अपने मोबाइल में इमाम हुसैन उर्दू TV 4 पर आप जो है इसको लिख लें और हमें इसी दिन यानी ट्यूसडे 9:30 बजे करबला टाइम पर फ़ोन करें, हम आपको मौला की ज़ियारत कराएंगे। आप अगर नहीं आ सके करबला, दिल में तो तड़प है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ना, दिल में तो चाहत है ना करबला पहुँचाएँ, दिल में तो तमन्ना है ना कि उस मकाम को आकर देखें जहाँ पर मेरा मौला 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया, दिल में तो तमन्ना है ना उस मकाम को आकर देखें जहाँ बाबुल हवाज अपने बाजुओं को कटाकर सो रहे हैं, दिल में तमन्ना है ना आपके, हर इंसान के दिल में तमन्ना होती है वो करबला आने की। हम यही मकसद, अगर आप अभी नहीं आ सकते, हम आपके हक में दुआ गो हैं, मौला जल्द आपको करबला बुलाए, लेकिन आप घर बैठकर मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कैसमे ग्रामी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी खेल मौला हुसैन का कर, मेरा नाम इम्तियाज हुसैन है। आवाज़ साफ नहीं आई, फिर से बता दे एक बार, आपका नाम क्या है? जी इम्तियाज हुसैन, पाकिस्तान खैरपुर मीरठ। इम्तियाज हुसैन, आप मौला जी पाकिस्तान खैरपुर मीरठ से। जी आप मौला बाबुल हवाज की बारगाह में अपना सलाम पेश करें, मौला हुसैन की बारगाह में, और जो भी दिल की हाजत है मौला तलब फरमाएं, मौला कबूल फरमाएंगे। और आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी लिख दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शोहदाए अबुल फजल अब्बास शहजाद अली के सबसे नजर करम कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही आमीन। मौला आपकी हाजत को कबूल फरमाए। हमने आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर भी लिख दिया है। आज आपका नाम लिखा गया, कल इंशाअल्लाह खुद आप मौला की बारगाह में तशरीफ़ लाएंगे और मौला को अपना सलाम पेश करेंगे मौला की बारगाह में। हम आपके हक़ में और दुनिया के तमाम मोमिनीन के हक़ में दुआ गो हैं, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे ताकि और लोगों को ज़ियारत करा सकें। फ़ी अमानिल्लाह। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से मोमिनीन जो दिल में तड़प लिए हैं, दिल में चाहत लिए हैं करबला की ज़ियारत की, और मकसद भी ज़ियारत है। सलामुन अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम। जी, आपका इसमें ग्रामी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं अलमास फातिमा बात कर रही हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, कराची आपका से। इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन पर। यकीनन आपने बड़े मसाइब सुने हैं, लेकिन यही वो सरजमीन है जहाँ पर मौला पे मसाइब पड़े हैं। तो जो भी दिल में हाजतें हैं उनके मसाइब को याद करते जाएं और मौला से दिल की हाजतें मांगती जाएं, मौला कबूल फरमाएंगे। सलाम पेश करें अपना बाबुल हवाज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। मौला अब्बास, मौला हुसैन आप सलाम, मौला को करोड़ों दरूद सलाम हो। मौला, आज का दिन बड़ी इबादतों का दिन था, आज के दिन खुदा ने जमीन को बिछाया। मौला हुसैन, आपको आपके नाना का वास्ता, ए मौला अब्बास आपको आपकी माँ की तहारत का वास्ता, मौला अली की नमाज शब का समर है आप, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपने एक फूल की बेटी को मांगा था, नाम सकीना रखा जो दिल का सुकून थी। मौला आपने बच्चों का वास्ता जो आपकी घर की रौनक थी, मेरे बहन भाइयों के नसीब खोल दीजिए, मेरी वालिदा को हयात दे दीजिए, वक्त इमाम को है तो जिंदगी सलामती दे दीजिए, वक्त इमाम की तमाना अलैहिस्सलाम के हमें तैयार कर दीजिए। आज उनकी 313 में हमारा शुमार हो रहा है। मौला ये परचम जो सब्ज है ना, उसमें हमारा नाम लिखा जाएगा। वादा कीजिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मौला। क्यों? क्योंकि जबान से निकलता है, हमारे कान नहीं सुन पाते। मौला आप लेते हैं तो इस परचम में मौला इमाम ज़माना के परचम में हमारा 313 में नाम दीजिएगा, और मेरे बहन भाइयों को पाँव को पागी से नवाज दीजिएगा, उनके नसीब खोल दीजिए और हमारी दुनिया आखिरत की कर दीजिए।
कीजिए मौला। हम तो आपसे मांग रहे हैं ना जो हिदायत की कश्ती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको वास्ता है, आपकी माँ फातिमा अलैहिस्सलाम का वास्ता मौला। हमारे दुखों को, गमों को, रंजों को दूर कर दीजिए अपने गम के सदके से, और जितने मोमिन मोमिनात हैं उन सबको सेहत और जिंदगी सलामती दीजिए। बेखसूस मेरी वालिदा सैयदत शाहजहां बेगम को सेहत और जिंदगी सलामती दीजिएगा। ए मेरे मौला, आप अपनी मां से बहुत मोहब्बत की, मेरी वालिदा बहुत अलील है। इलाही आमीन, अल्लाह शिफा दे, हमारी दुआ है करबला मुक़द्दसा में अल्लाह आपके वालिदैन को शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमाए, आपके भाइयों को मौला सलामत रखे। अल्लाह आप सबको जल्द अज जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। बहन मेरी दुआ है आप सबके हक़ में, इंशाअल्लाह मौला आप सबको इस सरज़मीन पर बुलाएंगे और आपकी तमाम तन्नेक हाजात को कबूल फरमाएंगे। मौला यकीनन आपकी आवाज़ को भी सुन रहे हैं, आपके दिल की तड़प को भी सुन रहे हैं। मौला ज़रूर आपकी हाजात को कबूल फरमाएंगे। मगर आपका नाम भी इस वक्त परचम पे लिख दिया गया और मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा बहन, ताकि और लोग भी आप किसी तरह ज़ियारत करना चाहते हैं। वक्त कम होता है, ज़ियारत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर कोई ज़ियारत कर ले, यही मकसद हमारा है। इजाज़त चाहूँगा, फ़ी अमानिल्लाह। जी यही मकसद है, जैसा कि बताया जा रहा है, बहुत तड़प है दिल में, चाहत है दिल में हर किसी की कि करबला आ जाए। क्या है करबला? करबला उस मकाम का नाम है कि जिसके वाक़े से पहले इस वाक़े को सुनकर कभी रसूल गिरिया करते हुए नज़र आए, कभी मौलाए मुत्तक़ियान रोते हुए नज़र आए, कभी जनाब ज़हरा ये फरियाद करती हुई नज़र आई, बाबा जब भी कोई मेरे हुसैन की ज़ियारत करने आएगा तो उसका अज्र क्या होगा? तो हर किसी ने कहा, जनाब ज़हरा ने कहा, जब तक मैं दाखिले जन्नत ना कर दूं तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। इमाम हसन ने कहा, मैं जब तक उनको कौसर से सैराब ना कर दूं, मैं जन्नत का सरदार हूं, ने जन्नत में ना दाखिल कर लूं अपने साथ, मैं जन्नत में नहीं दाखिल होऊंगा। मौलाए मुत्तक़ियान ने कहा, मैं साक़ी कौसर हूं, उन्हें कौसर से सैराब करूंगा। एक एक इमाम ने कहा, जनाब ज़हरा ने कहा, बाबा आप क्या देंगे? रसूल ने कहा, मैं आखिरी नबी हूं, क़यामत में हर कोई जो है अपने इमाम को तलाश करेगा, मैं रसूल ज़ाहिर हुसैन को तलाश करूंगा, इमाम हुसैन के ज़ायरीन को तलाश करूंगा। ये है फ़ज़ाइल करबला, ये है फ़ज़ाइल ज़ायरीन करबला। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इसमें गिरामी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मेरा नाम सैयद सादिक अब्बास है, मैं लखनऊ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपका इस्तकबाल है जनाब सादिक अब्बास साहब, सरज़मीन करबला मुक़द्दसा इमाम हुसैन उर्दू टीवी में। आप यकीनन हर मौला के चाहने वाले के दिल में एक तड़प होती है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए, लेकिन जब नाम करबला आ जाए तो वो तड़प दिल से जो है ज़बान पर और दिल से आँखों में आ जाती है आंसू बनकर। जो भी आपके दिल में हाजतें हैं वो बाबुल हवाइज की ज़ात को सलाम करके, मौला हुसैन की ज़ात को सलाम करके तलब करें, मौला ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका अलल हुसैन, अस्सलामु अलैका व अला अली इब्नुल हुसैन, अस्सलामु अलैका व अला औलादिल हुसैन, अस्सलामु अलैका व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इस वक्त आप जी फरमाइए। जी आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी लिख दिया गया है। आप दुनिया बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी मौला इंशाल्लाह दुआ है जल्द जल्द आपको, आपके अहले खाना को करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए और सारी नेक हाजात को आपके कबूल फरमाए। और ये जो अभी आप सलाम पेश कर रहे हैं इसको आप इमाम हुसैन उर्दू टीवी जो है यूट्यूब फेसबुक पर ख़ुद अपने आवाज़ को सुन भी सकते हैं, अपने आप को करबला में महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे ताकि और लोगों की भी ज़ियारत करा सकें। शुक्रिया। जी शुक्रिल्लाह। जी देखिए मोमिनीन हर दुनिया के कोने कोने से फ़ोन कर रहे हैं ताकि ज़ियारत कर सके, तड़प है दिल में, चाहत है दिल में। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उर्दू टीवी का मकसद, ये जो मैं हुसैनी हूँ प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद ही यही है। ये फ़ारसी में भी हो रहा है, ये इंग्लिश ज़बान में भी हो रहा है, ये उर्दू ज़बान में भी हो रहा है, ये अरबी ज़बान में, ये टर्की ज़बान है। 5 ज़बानों में इमाम हुसैन जो है इस वक्त इस चीज़ों को नशर कर रहा है मोमिनीन की सहूलत के लिए। तो आप
آپ اس چیز میں، اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں زیارت کرنے کے لیے ہمیں کال بھی کریں آپ۔ السلام علیکم۔ کہیں بھی دنیا کونے میں آپ ہوں، جہاں بھی ہوں، اسکرین پر دیا ہوا نمبر ہے، آپ اس کو سیو کریں اور ہمیں کال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں صدف فاطمہ بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کا انڈیا۔ جی صدف فاطمہ جی، آپ کا استقبال ہے امام حسین علیہ السلام کے دیار میں، دربار میں۔ آپ بالکل اس وقت بین الحرمین موجود ہیں۔ آپ کی آواز مولا عباس تک پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز علی اکبر تک پہنچ رہی ہے، امام حسین تک پہنچ رہی ہے۔ جو بھی دل میں حاجتیں ہیں اس زمین پر، ان کے سلسلے سے مانگیے، مولا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہم آمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا مولا فضل العباس ورحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی جناب مولا عباس آپ سے بی بی سکینہ کا واسطہ، بی بی محمد رضا کا واسطہ، جو مومن پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، جن کی جو حاجت ہے وہ حسب حاجت کو اٹھا دیا، امام زمانہ کا ظہور دے سے چل کرتے، اور اس امام حسین ٹی وی تو آباد رکھ اور زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر۔ الہی آمین، الہی آمین۔ گزار ہو کہ آپ نے ہم کو اتنا اچھا موقع دیا ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے الہی آمین، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یہ شکر اور تقدیر جو ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو اس وقت کاوش کی، جنہوں نے ہماری بھی دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اسی طریقے سے یہ خدمت جاری و ساری رہے اور ہم آپ سب کے حق میں کربلا مقدسہ سے دعا گو رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، فی امان اللہ۔ جی امام حسین علیہ السلام اردو ٹی وی کا مقصد دنیا کسی کونے میں پرچم امام حسین علیہ السلام پر آپ کا نام لکھنا۔ آپ جب بھی کربلا تشریف لائیں تو اس وقت یہاں پر جب بھی پہنچے تو اسی نمبر پر اگر آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام اردو ٹی وی میں مہمان بھی بنائیں گے، آپ کا استقبال بھی کریں گے، آپ جہاں سے بھی آئیں، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام اردو ٹی وی کی طرف سے خاک شفا بھی ہدیہ میں دی جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں سیدہ صدف فاطمہ، میں ابھی بنگلہ دیش میں ہوں، میں بنگلہ دیش سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا استقبال ہے سیدہ صدف فاطمہ جی۔ اس وقت آپ بالکل مولا کے بارگاہ میں، مولا کی جوار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ یقیناً آپ عشق ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ مولا عباس کو ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ دے کر، جناب سکینہ کی پیاس کا واسطہ دے کر، جناب زینب کی رضا کا واسطہ دے کر، امام حسین کو علی اکبر کے سینے پہ لگی ہوئی برچھی کا واسطہ دے کر آپ سلام کر کے مانگے، مولا ضرور قبول فرمائیں گے آپ کی دعاؤں کو۔ بے شک بے شک۔ سلام کریں۔ میں مولا کے دربار میں زیارت پیش بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ بحق معصومین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لبیک یا حسین، زیارت میں پڑھتی ہوں امام الحسین علیہ السلام کی دل سے نزدیک جسم سے دور سبھی مومنین مومنات کے حوالے سے، آدم سے لے کے خاتم تک، قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین امام المتقین علی بن ابو طالب حیدر کرار۔ جی معذرت چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا آدھی گھنٹے کا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پھر زیارت کرائیں گے اگلے ہفتے، اور آپ کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے۔ جہاں جہاں بھی آپ اس نمبر کو سیو کریں، ہمیں کال کریں اور ایک صدا کے ساتھ، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، فی امان اللہ۔